اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیے، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر بھی اسکرین پر دیا گیا ہے۔ تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں ریاست مہاراشٹر کے علاقے کوکن میں ہوں، رتنا گری ضلع میں۔ گزشتہ کل رتنا گری ضلع کے جے گڑھ گاؤں میں بہت ہی شاندار دینی تعلیمی پروگرام ہوا، جس میں علاقے کے مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھائیوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہاں کے ہندو بھائیوں کے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی شریک رہے۔ مدرسہ تحفیظ القرآن مفتی صابر صاحب اور ان کی ٹیم نے زبردست انداز میں محنت کی تھی، اور گزشتہ کل کا یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ مولانا عمر صاحب حسینی دھامسکر کی قیادت میں یہ سفر ہوا، اور اس سفر میں رتنا گری ضلع میں 2-3 کامیاب پروگرام رہے۔ ابھی اس وقت میں پاٹن میں ہوں، اور پاٹن کے بی ڈی کالج میں صبح 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک راشٹریہ ایکتا پر بہت ہی اہم پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے سفر کو آسان فرمائے اور تمام پروگرامز کو، اور اللہ تعالیٰ یہ خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں آڈیو کی شکل میں، کیونکہ سفر میں ہوں اس لیے آڈیو کی شکل میں، آواز کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، پھر ایک بار میں آپ کو بتا دوں کہ ہیومن رائٹس واچ جو ورلڈ رپورٹ تیار کرتی ہے اور دنیا کے تقریباً 100 ممالک پر اس کی رپورٹ مشتمل ہوتی ہے، ہیومن رائٹس واچ نے ہندوستانی حکومت پر، بی جے پی سرکار پر، مودی سرکار پر زبردست انداز میں الزامات لگائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان میں ہندوتوادی حکومت برسر اقتدار ہے، اور مسلمانوں کے تحفظ میں مودی حکومت پوری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ داڑھی، ٹوپی اور مسلمان دیکھ کر موب لنچنگ کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی جان و مال، ان کے دکانوں، ان کے کاروبار پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے ورلڈ رپورٹ 2024 میں ہندوستانی حکومت پر کئی سخت الزامات لگائے ہیں، اور رپورٹ میں حکومت پر مذہبی اقلیتوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں تقریباً
27-28 पार्टियों का इत्तेहाद हुआ है, महागठबंधन हुआ है, जिसे इंडिया अलायंस या इंडिया इत्तेहाद के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि तमाम अपोजिशन पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक हो गई है कि मुल्क में अगर एकता, अमन, शांति लानी है और मुल्क को बेरोजगारी, दंगे फसाद से बचाना है, तो फिर बीजेपी को यहां से इख्तिदार से, सत्ता से हटाना बहुत ज़रूरी है। आज इंडिया इत्तेहाद यानी महागठबंधन के लीडरान की मीटिंग होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे को सदर, नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाए जाने और सीट शेयरिंग को हतमी शक्ल देने का इम्कान है। यानी आज इंडिया अलायंस, इंडिया महागठबंधन की मीटिंग है और उसमें तमाम बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे। इंडिया इत्तेहाद बीजेपी के मुकाबले में इस वक्त सामने खड़ा है और चाहता है कि बीजेपी को इख्तिदार और सत्ता से हटाकर मुल्क को बेरोजगारी, मुल्क को दंगे फसाद और मुल्क को महंगाई से बचाया जा सके। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप जानते हैं मेरा एक मशहूर जुमला है और तकरीबन 10 साल से मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ कह रहा हूं। मेरा एक जुमला है कि जैसे तोते की जान पिंजरे में है, ऐसे ही मोदी की जान मशीन में है। जब तक ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहेगी, भाजपा जीतती ही रहेगी। लेकिन अब अच्छी खबर ये आ रही है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ अब पूरे मुल्क में एहतजाज, आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। अभी 4 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, जिसमें महमूद पराचा खुद मौजूद थे, जबरदस्त अंदाज में ईवीएम के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया, आंदोलन किया, मोर्चा खोल दिया। और अब मैं आपको बताऊं कि भारत मुक्ति मोर्चा, बाम सेफ, वामन जी मेश्राम, इनकी भी पूरी टीम मुल्क में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रही है। सच तो यही है कि जब अमेरिका, बर्तानिया, लंदन, फ्रांस, जापान, दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में ईवीएम को बंद कर दिया गया है, तो भारत में आखिर इसे बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। हम सबका और तमाम लोगों का यह मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यह होता है कि जहां इलेक्ट्रॉनिक लफ्ज आ गया वहां पर कुछ भी गड़बड़ी मुमकिन है और कुछ भी हो सकता है। और बीजेपी इसी का नाजायज इस्तेमाल और नापाक इस्तेमाल करके बाकायदा सत्ता में आ रही है और कुर्सियां हासिल कर रही है। 2024 के लिए बीजेपी ने जबरदस्त अंदाज में ईवीएम की सेटिंग की है, इसलिए तकरीबन तमाम अपोजिशन पार्टियां ईवीएम के खिलाफ अब मैदान में उतर रही है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार केत और जस्टिस मनोज जैन की डिवीज़न ने यह फैसला सुनाया है कि कोई भी गैर मुल्की हिंदुस्तान में रहने या हिंदुस्तान में बसने का दावा नहीं कर सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि कोई भी गैर मुल्की शहरी आइन के आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल ई के तहत हिंदुस्तान में रहने या बसने का हक का दावा नहीं कर सकता। बेंच ने कहा कि गैर मुल्कियों या मुश्तबा गैर मुल्कियों के बुनियादी हुकूक सिर्फ आईन हिंद के आर्टिकल 21 के तहत ऐलान करदा जिंदगी और आज़ादी के हक तक महदूद है। बेंच ने कहा कि हम ये भी नोट कर सकते हैं कि गैर मुल्की शहरी ये दावा नहीं कर सकते कि उन्हें आईन हिंद के आर्टिकल 19(1) और ई के मुताबिक हिंदुस्तान में रहने और आबाद होने का हक हासिल है। यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने खुले तौर पर यह फैसला सुना दिया है कि किसी भी गैर मुल्की को हिंदुस्तान में रहने या बसने का दावा करने का हक हासिल नहीं है। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य ओपनिंग होने जा रहा है और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह पर ही बन रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ तौर से ये कहा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाते वक्त कहा है कि बाबरी मस्जिद को गिराने वाले मुजरिम हैं। इसलिए मेरा क्लियर तौर से यह कहना है कि राम मंदिर गलत तरीके से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी है, लेकिन कब्जा करके या यूं समझिए कि किसी की आस्था, किसी के जज्बात से खेलकर राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह पर बनाया जा रहा है। अब राम मंदिर
का ओपनिंग करने के लिए मोदी जी और बीजेपी बेचैन हैं, क्योंकि 2024 में बीजेपी को रोटियां खाने का मौका मिलेगा सिर्फ राम मंदिर के नाम पर। इसलिए कांग्रेस ने यह कहा है कि हम राम मंदिर का ये जो भव्य ओपनिंग का प्रोग्राम है, कांग्रेस ने कहा है कि हम इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि ये राम मंदिर का प्रोग्राम नहीं है, ये आरएसएस का प्रोग्राम है और बीजेपी का प्रोग्राम है। बल्कि कई शंकर आचार्यों ने, 4 बड़े शंकर आचार्य जो मुल्क में हैं, इन्होंने भी राम मंदिर के प्रोग्राम में जाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मोदी पाखंडी है और सिर्फ इलेक्शन में फायदा हासिल करने के लिए मोदी राम मंदिर का, अधूरे राम मंदिर का ओपनिंग कर रहा है। और आचार्य और संतों का यह कहना है कि अधूरे मंदिर का ओपनिंग करना पाप है और मोदी महापापी है। इसलिए कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा का इलेक्शन करीब आ रहा है और इसी वजह से राम मंदिर का ओपनिंग करने मोदी जा रहा है। अयोध्या में मजहबी नहीं, कांग्रेस का कहना है कि अयोध्या में मजहबी नहीं बल्कि सियासी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुंबई में मंशियात, ड्रग्स और एमडी जैसी खतरनाक नशा आवर पदार्थ का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट से खबर आ रही है कि थाईलैंड की एक महिला, थाईलैंड की एक खातून मुंबई एयरपोर्ट पर 40 करोड़ रुपए की कोकीन नशा आवर पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर ली गई है। 21 साल की यह खातून शहरी थाईलैंड की है। कोकीन के स्मगलिंग के इल्जाम में इस वक्त उसको हिरासत में ले लिया गया है जब वो वापस मुंबई के हवाई अड्डे पर पहुंची। बताया जा रहा है कि जो नशीली पदार्थ कोकीन उसके साथ पकड़ी गई है उसकी कीमत मार्केट के एतबार से 40 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। गैर मुल्की शहरी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार की गई है और मजीद तफ्तीश जारी है। गुज़िश्ता 2 दिन पहले मुंबई एयरपोर्ट पर नाइजीरियन सिटीजन्स को भी पकड़ा गया था जिन्होंने करोड़ों रुपए की मंशियात की स्मगलिंग की थी। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है। रियासत महाराष्ट्र के शिवसेना के दबंग और कद्दावर नेता संजय राउत का भी मोदी को लेकर और राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान आया है। संजय राउत ने कहा कि इस वक्त मोदी सबसे बड़े शंकर आचार्य बन गए हैं, यानी मोदी को किसी साधु और शंकर आचार्य की भी जरूरत नहीं। अगर बस चले तो मोदी खुद जाकर राम मंदिर का ओपनिंग कर देगा और मोदी इसके लिए बड़ा बेचैन है क्योंकि राम मंदिर के ओपनिंग के जरिए से मोदी और बीजेपी को सत्ता हासिल होगी। 2024 में रोटियां हासिल करने का और कुर्सियां हासिल करने का सबसे बड़ा सहारा बन रहा है बीजेपी का राम मंदिर। मैंने इससे पहले भी खबर में कहा कि हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के 4 बड़े धर्मगुरु, 4 बड़े शंकर आचार्य ने कहा कि मोदी पाखंडी है और मोदी पाखंड कर रहा है और अधूरे राम मंदिर का ओपनिंग करने जा रहा है। एक्चुअल में राम मंदिर जब मुकम्मल होगा तो लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो जाएगा जिसका फायदा मोदी को नहीं मिलेगा। इसलिए मोदी जी अधूरे राम मंदिर का ओपनिंग लोकसभा के इलेक्शन से पहले कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि इस वक्त मोदी खुद सबसे बड़ा शंकर आचार्य बन गया है और यह भी कहा कि मोदी मुल्कों का सफर कर रहा है। जी हाँ, इलेक्शन के प्रचार कर रहा है लेकिन मणिपुर 7 महीने से जल रहा है। मेरा मशहूर डायलॉग है कि इन 5 महीनों में मोदी 5 मुल्क घूम के आ गया लेकिन मणिपुर जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि मणिपुर हमारे मुल्क की एक स्टेट है और 7 महीने से मणिपुर जल रहा है, दंगे फसाद और वहां पर लोगों का, बेकसूर लोगों का कत्ल किया जा रहा है। लेकिन मोदी को मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है, मगर अयोध्या जाकर मोदी जी सेहरा पहनने की पूरी कोशिश करेंगे। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। अगला दिन रियासत उत्तर प्रदेश के एक तहरीकी इल्मी शहर देवबंद में एक आलमी इदारा है दारुल उलूम देवबंद, और ये वही इदारा है जहां से अंग्रेजों को भगाने के लिए मुहिम चली थी और मुजाहिदीन
मुजाहिदीन आज़ादी और स्वतंत्र सेनानी उलमा की शक्ल में देवबंद से पैदा हुए थे। जी हाँ, इस वक्त खबर आ रही है कि दारुल उलूम देवबंद में दरसे मुसलसलात का इनेकाद अमल में आ गया। शेख सानी अल्लामा कमरुद्दीन गोरखपुरी ने शरीक तलबा को सनदे हदीस से नवाजा। आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद की दारुल हदीस में गुज़िश्ता कल शेखुल हदीस सानी हज़रत अल्लामा कमरुद्दीन गोरखपुरी ने तलबा के जम्मे गफ़ीर को मुसलसलात का दर्स दिया और अपनी सनद से नवाजा। जुमा के रोज़ दारुल हदीस दारुल उलूम देवबंद में सुबह 8:30 बजे से मुसलसलात के दर्स का आगाज़ हुआ। शेखुल हदीस अल्लामा कमरुद्दीन गोरखपुरी ने दौरे हदीस के तलबा के सामने ये तारीख़ी दर्स दिया जो मुसलसल 3 घंटे तक चला और तमाम तलबा पूरी तवज्जो और इन्हमाक से दर्स सुनते रहे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गज़ा फ़लस्तीन के हालात को लेकर। आप जानते हैं मुसलसल 3 महीनों से मैं गज़ा और फ़लस्तीन के हालात आप तक पहुंचा रहा हूं। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी और सुपर पावर टेररिस्ट अमेरिका और इजराइल, मैं इन्हें डायरेक्ट टेररिस्ट और आतंकवादी कहता हूं क्योंकि इन्होंने इन 3 महीनों में गज़ा और फ़लस्तीन में 24,000 बेकसूर आम शहरी सिविल सिटीजन्स की जान ले ली है। 9,000 के करीब छोटे छोटे मासूम बच्चों को इन्होंने शहीद किया। 8,000 के करीब इन्होंने औरतों को मार दिया और 24,000 के करीब आम शहरियों को मार दिया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के खिलाफ, आप जानते हैं कि जनूबी अफ्रीका इजराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में जा चुका है कि इजराइल ने नस्ल कुशी है, कत्ल आम किया है। लेकिन खबरें आ रही है कि आलमी अदालत इंसाफ में इजराइल ने हद धर्मी करते हुए अपने दिफा में नस्ल कुशी के तमाम इल्ज़ामात को झूठा करार दिया और इंतहाई मस्ख शुदा करार देते हुए तमाम इल्ज़ामात से पल्ला झाड़ लिया। जबकि दुनिया ने देख लिया कि किस तरीके से इजराइल ने आतंकवाद का नंगा नाच वहां पर खेला और किस तरीके से 9,000 मासूम बच्चों और 8,000 औरतों का कत्ल कर दिया। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त ममलकत सऊदी अरबिया की राजधानी जद्दा से आ रही है। जी हाँ, आज़िमीन हज के लिए गोया कि ये एक खुशखबरी वाली खबर है कि जद्दा एयरपोर्ट से अब डायरेक्ट मस्जिदुल हराम के लिए फ्लाइंग टैक्सी का इंतज़ाम हो चुका है। सऊदी एयरलाइन की जानिब से जल्द ही फ़ज़ाई टैक्सी सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। 100 के करीब इलेक्ट्रिक तैयारों की खरीदारी का एग्रीमेंट हो गया है। बिजली से चलने वाले ड्रोन की तर्ज के इन तैयारों में 6 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होगी। ये तैयारे जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुसाफिरों को डायरेक्ट हरम मक्की शरीफ ले जाएंगे। अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा में मुनक़िदा दूसरी हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में सऊदिया एयरलाइन के तैयारे का मॉडल सामने रखा गया है और अब बहुत जल्द बाकायदा जद्दा एयरपोर्ट से डायरेक्ट मस्जिदुल हराम के सहन में फ्लाइंग टैक्सी से आज़मीन सफ़र कर सकेंगे और बआसानी पहुंच सकेंगे। ममलकत सऊदी अरबिया की वो एक खबर जिसमें स्मृति ईरानी मदीना मुनव्वरा पहुंची है, इसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है और हम भी इसको लेकर ममलकत सऊदी अरबिया के खिलाफ हैं। हमारा मानना है कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन इलाकों में, इन मुक़द्दस इलाकों में मुशरिकीन के दाखिले से मना किया था। लेकिन इस वक्त के ये सऊदी हुक्मरान जो बैठे, जिनका जहन पूरा यहूदियत में लथपथ है, ये तमाम के तमाम ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे आलमी इस्लाम के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंच रही है।